Again to this crypto mastery course. You are at module 4 now. We will be doing the second lesson in the technical analysis section. आज की वीडियो में हम बात करेंगे about demand zone, supply zone, what is support, resistance, confluences, range trading, inefficient candles, and then lastly we will talk about what are support, resistance, retest, bullish, bearish retest, and I will explain all these things to you guys in detail. As always, अगर आपके पास कोई पेन या पेपर है तो प्लीज़ साथ नोट्स लेते जाइएगा बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है and this will set your foundation for the upcoming lectures that we have. Um, I'm sure आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये टर्म सुनी होंगी अगर आप किसी क्रिप्टो ग्रुप में हैं या किसी को फॉलो करते हैं. द कॉइन इज़ इन सपोर्ट जोन, द कॉइन इज़ इन डिमांड जोन. वो आज आपको मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा and together with the first lectures that I gave you, you will combine those and those three lectures will really help you. So let's start the lecture, and once again please watch this entire lecture in one go ताकि हम मॉड्यूल 4 ख़त्म कर सकें. And once again, you're 30% done with the course. Good job, well done. This is the fourth module that we're doing, and after learning this module you will become more confident as a trader. तो सबसे पहले हम बात करते हैं support or resistance की. And before we talk about support and resistance, I will also include some information about how whales navigate in the market. Whales, otherwise known as market makers, उनका एक certain mindset होता है जो वो लेके चलते हैं when they're trading, when they take profits. वो मैं आज आपको कुछ strategies बताऊंगा, and then you will be able to use those strategies to become a better trader. और इनमें आज जो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें नज़र आएंगी जो शायद आपने मिस्टेक्स की हों in the form of revenge trading, not being able to control your emotions and all of these things. So as you see, I have drawn two horizontal lines, ये वाली, नीचे वाली और ऊपर वाली. Okay, so we're going to start with support and resistance, otherwise known as demand zone slash supply zone. ये basically इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा आना शुरू हो जाती है and its supply starts to shrink, the price of the coin or the commodity goes up. um, इसी तरीके से इसमें भी यही होता है. आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात पे आप कोई अगर चीज़ लेना चाह रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कभी-कभी उसकी प्राइस स्पाइक अप कर दी जाती है. But you guys need to understand what demand zone is. So let's say for example we are market makers or we are whales, ठीक है? और आप हमारे पास चॉइस है कि हमने एक कॉइन ख़रीदना है and we all want to pick one price point that we want to buy it at. So we have the option of buying the coin at $2, $4, $6, $8, $10. आप मुझे बताएं कि आप किस प्राइस पे ख़रीदना चाहेंगे. Ask yourself this question. अगर आप समझदार होंगे और आप चीज़ों को समझेंगे तो all of us would obviously want to buy it at $2. Once we buy it at $2, let's say for example we're a group and all of us together combined decide that we want to buy it for $2. हमने $2 पे सब ने ले लिया, 10 लोगों ने. किसी के पास $1,00,000 है, किसी के पास $3,00,000 है, किसी के पास $4,00,000 है. हम सारों के मिला के क्यूमुलेटिव जो पैसे बनते हैं उसकी वजह से प्राइस के अंदर पंप होगा. सो दिस इज़ हाउ वेल्स वर्क. सो डिमांड जोन वो होती है जहाँ से कोई भी बेशक आप LTF पे देख रहे हैं या बेशक आप HTF पे देख रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम or high time frame, wherever a coin bounces from or keeps bouncing from is called your demand zone. Okay, and wherever the coin rejects from, tries to break out and keeps getting rejected and comes back down, that is called your
supply zone, otherwise known as resistance. ठीक है? So now if you see demand zone में हमें अगर देखें, अगर if the demand zone is at 2, right? So we decide that the demand zone है $2 और जो हमने डिसाइड किया जहाँ हम जाके बेचेंगे वो होगा $10. सही है? So now we as whales bought over here for $2. ठीक है? हमने $2 पे लिया and it went up, came back down, went up, came back down, and then finally it broke out. और इस प्राइस पे when it's close to $10, we have a word with each other. हम कहते हैं कि हम अब profits ले रहे हैं, ठीक है? And we take profits, and the price of the coin comes back down to over here. Now जो आम लोग होते हैं वो हमेशा गलती ये करते हैं कि वो डिमांड जोन को देखते नहीं है, वो देखते नहीं कि RSI बॉटम पे है कि नहीं, और वो हमेशा ऊपर ले लेते हैं. दे टेंड टू बाय ओवर हियर, ठीक है, इस जगह पे ले लेते हैं. और जब इस जगह पे आता है कॉइन तो दे डोंट टेक प्रॉफिट्स बिकॉज थोड़े से प्रॉफिट्स हो रहे हैं एंड दे एक्सपेक्ट दैट द प्राइस विल कीप गोइंग अप. बट once it goes and gets rejected and starts to come down, they start to panic over here, they panic some more. इधर जाके थोड़ा सा जब पंप आता है तो वो कहते हैं बस खुदाया एक दफ़ा ये ऊपर चला जाए, आज के बाद मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करूँगा, that's it for me, I will never trade again. And it keeps going down again and again, and this is what happens, that it comes back into the demand zone. और डिमांड जोन में हम जैसे वेल्स या मार्केट मेकर्स बैठे होते हैं जो फिर से कॉइन को लेते हैं और फिर से उसको उसी प्राइस से पंप करके ऊपर ले जाते हैं, और फिर एक ये रिपीटेड साइकिल होती है जो बार बार होती है. ओके, सो now what we're going to do is we're going to look at another example of demand and supply so that you guys aren't confused. So होता ये हमने डिसाइड किया, हम सब ने डिसाइड किया कि हम $2 पे लेंगे और $10 से करीब करीब बेचेंगे. जब $10 से करीब करीब जाएगा, इधर से हमने लिया, पंप किया कॉइन को, ठीक है जी, हायर हाइज हायर लोज, रेजिस्टेंस पॉइंट पे गया. इधर इधर जो आम लोग हैं वो दे स्टार्ट फोमोइंग इन, ठीक है, वो इधर फोमो करना शुरू होते हैं कि हम ले लेंगे और वी विल गेट रिच एंड यू नो वी विल मेक लॉट्स ऑफ मनी. एंड दिस इज़ वेयर द मार्केट मेकर्स डिसाइड कि अभी RSI आपकी ओवरबॉट जोन में आ गई है, ठीक है, 70 से ऊपर चली गई है, एंड वी बॉट इन द ओवरसोल्ड जोन, सो लेट्स टेक प्रॉफिट. सो ऑल ऑफ अस हु पंप द कॉइन अप टेक प्रॉफिट्स, ठीक है. और हम कहते हैं कि हमारे पास फिर चॉइस होती है, हमने 2 पे लेने, 4 पे लेने, 6 पे लेने, 8 पे लेने, 10 पे लेने, और हम फिर से उस कॉइन को उधर लेके आते हैं $2 पे. और जिस बंदे ने इधर लिया है और वो जब ये जाते देखता है नीचे तो वो फिर रोना शुरू हो जाता है कि मेरी किस्मत बुरी, मेरे साथ ज़माना हमेशा जो मैं कॉइन लेता हूँ वो डंप कर जाता है और मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता. एंड देन दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग and we buy again from the demand zone and we keep pumping the coin up again, और फिर इसी तरीके से वो वापस जाता है नीचे एंड इधर फिर से लोग ट्रैप हो जाते हैं जो इवेंचुअली आके इस जगह पे बेचते हैं. सो दिस इज़ व्हाट डिमांड एंड सप्लाई अदरवाइज नोन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़. जहाँ पे मार्केट मेकर्स इंस्टीट्यूशंस बाइंग करती हैं उस जगह को बोलते हैं डिमांड स्लैश सपोर्ट, और जिस जगह पे बेचते हैं या जिस जगह से रिजेक्ट होता है उसको बोलते हैं सप्लाई स्लैश रेजिस्टेंस, एंड वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ दिस अगेन. ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी. दूसरी जो चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, दैट अ रेंज ऑफ अ कॉइन. HTF पे और रेंज होती है, LTF पे और रेंज होती है. I will show you an example of ETH, how to draw ranges as well, and what indicators we can use to mark support and resistance levels if you don't know how to. ठीक है, so right now we see that $2 is the bottom of the range and $10 is the top of the range, and we are stuck in this range. ना इस रेंज को हमने तोड़ा है और ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द अपसाइड, ना हमने इसको नीचे की तरफ तोड़ा है. ठीक है, सो इफ़ यू सी द डिमांड जोन हैज़ ऑलमोस्ट 1 2
3 and 4 touch points to the downside, and the resistance has 1 and 2 touch points towards the upside. ठीक है, एक रूल ऑफ थंब जो आपने याद रखना है वो ये है कि एनी टाइम अ कॉइन स्टार्ट्स टू टेस्ट either support and resistance a few times, it starts to get weak. मतलब 3 दफ़ा से ज़्यादा सपोर्ट टेस्ट होगी या 3 दफ़ा से ज़्यादा रेजिस्टेंस टेस्ट होगी, इसका मतलब है कि वो वीक होती जा रही है, एंड चांसेस आर दैट इट विल break out or break down, and we will see a new range forming. Okay, so if we take this example right now, ठीक है, ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप जरा आस्क योरसेल्फ नाउ, हाउ मेनी टच पॉइंट्स डू वी सी एट सपोर्ट एंड हाउ मेनी टच पॉइंट्स डू वी सी एट रेजिस्टेंस. ठीक है, हमने अगर इस कॉइन को एनालाइज करें तो $2 पे हमें 1 टच पॉइंट एंड देन 2 टच पॉइंट नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स के सपोर्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस पे हमें 1 touch point, 2 touch point, 3 touch points, 4 touch points, 5 touch points, and then 6 touch points. जब जब एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बार बार टेस्ट हो, इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा चांसेस हैं उसके ब्रेकआउट होने के. तो इधर हम देख सकते हैं 2 दफ़ा सपोर्ट टेस्ट हुई है, इसका मतलब है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस क्योंकि 6 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, 6 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, तो चांसेस आर that we break out of this range of $2 and $10 and form a new range. Breakout उस चीज़ को बोलते हैं. अभी I will tell you what a breakout is again also. So this setup that I'm showing you over here is more of a bullish setup because support 2 दफ़ा टेस्ट हुई है, रेजिस्टेंस आपकी 1 2 3 4 5 6 दफ़ा हुई है. इसका मतलब है कि every time someone sells, new buyers come in. So कोई बेचता है, इधर नए बायर्स आ जाते हैं, फिर कोई इधर बेचता है, फिर नए बायर्स आ जाते हैं, फिर कोई बेचता है, तो वो बार बार रेजिस्टेंस को टच करें, एंड द सेलर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड and we will form a new range. Again, examples will be shown to you. So this is called the range. हमेशा हम रेंज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं. $2 पे आए आप बाय कर लें, $10 पे आए आप सेल कर दें. ठीक है, and similarly, once a new range forms, we trade in that new range. That's how support and resistance, demand and supply zone works. अगर इसका हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो वो ये होगा कि let's say for example if we want to see a bearish example of support and resistance, what we'll do is we'll draw something like this. ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे. ठीक है, so now at this point you see that your support has been tested once, twice, 3 times, 4 times and then 5 times. और जो आपकी रेजिस्टेंस है $10 की, वो खाली 1 दफ़ा टेस्ट हुई है. ओके, सो दैट मीन्स आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट आपकी आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जा रही है. इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ हाई चांस दैट दिस सपोर्ट विल ब्रेक ऑफ $2 एंड देन द कॉइन विल कम डाउन. ये हो गया इसका बेयरिश सिनेरियो. Okay, again go back to any point that confuses you or you want to look at it again ताकि आपकी confusion दूर हो जाए. लेकिन जब मैं आपको examples दिखाऊंगा तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. Now the final thing that you need to understand, I've told you what support is, I've told you what resistance is, I've told you what range is. Range के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग हुई होती है, जितनी भी ट्रेडिंग हुई होती है, ज़्यादा हो कम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस. ओके, सो ऑल ऑफ दिस, द traded area inside the range is called confluence, and I will explain to you why confluence is so important. But first let's go to the Ethereum chart and draw some support and resistance levels so that you guys aren't confused about what I just talked about. Okay,
ऑलवेज रिमेंबर, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं HTF पे या LTF पे, हम हमेशा टच पॉइंट्स ढूंढते हैं टूवर्ड्स द अपसाइड एंड टच पॉइंट्स ढूंढते हैं टूवर्ड्स द डाउन साइड, बट समटाइम्स ये हो सकता है कि आप ना ढूंढ सकें। सो उसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा विच यू कैन यूज़। सो नाउ मैं जैसे ही इथीरियम का चार्ट खोलता हूँ ऑन द 4 hourly टाइम फ्रेम, राइट, आई सी अ रेंज फॉर्मिंग ओवर हियर, ठीक है, between these area. This is a range that's been formed on the 4 hourly time frame. और मैंने आपको बोला टच पॉइंट्स टूवर्ड्स द डाउन साइड, जहाँ से आपको पंप्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ से बाउंस बैक नज़र आ रहे हैं, तो वो ये जोन होगी जहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। और आपने इनको कंबाइन करने, तो आपको एक डिमांड जोन अदरवाइज सपोर्ट मिल जाएगी। और आपने फिर वो पॉइंट्स भी देखने हैं जहाँ से रिजेक्शन हुए या जहाँ से वो कॉइन गिरा है, एंड दैट विल बी कॉल्ड योर सप्लाई जोन अदरवाइज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये देखें, मैंने मोटा मोटा इसको करके बना दिया। इसका एक आसान तरीका ये है कि या तो आप ट्रेंड लाइन बना लें, या तो वो चीज़ करें जो मैं करने लगा हूँ, विच इज़ मेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, सो आई टेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आई सी कि ये वाला जो पॉइंट है, आपने देखें मोस्ट कितनी जगह से वो बाउंस हुआ है। So this is one area which it has bounced from several times, which we can say is the demand zone. Our priority is to find at least 3 areas जहाँ से वो bounce हुए. So if you see, we see 1, 2, 3, almost 3 areas where this coin Ethereum has bounced from. ज़रूरी नहीं कि आपके लेवल्स शुरू में बिल्कुल परफेक्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो योर लेवल्स विल improve. So this is the area where it's been rejected from. अब देखें रेंज खुद ही बन गई है, इधर रिजेक्ट हुए once, twice, 3, 4, it pumped over here, ठीक है, it pumped over here, came back down to retest. अभी हम retest के बारे में बात करेंगे, and didn't hold the retest and it came back down to the same range. इधर भी ऐसे ही हुआ, it went up, tried to hold this as support, didn't hold it as support, and back again in that same range. And market structure आप देख सकते हैं, lower highs and lower lows बन रहे हैं। बट इफ़ वी सी LTF के चार्ट के मुताबिक 4 hourly टाइम फ्रेम पे, अब आपसे अगर मैं सवाल करूं, मुझे बताएं 4 hourly टाइम फ्रेम के मुताबिक ईथ किस रेंज के अंदर है, व्हाट इज़ द रेंज दैट ईथ इज़ ट्रेडिंग इन। तो आपका जवाब होगा अराउंड 1840 से लेकर 1930 की रेंज के अंदर इथीरियम अभी ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो इस जगह पे जो मार्केट मेकर्स हैं 4 hourly टाइम फ्रेम पे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, 1839 पे सारे मिल के लेंगे। ओके, वी विल पंप इट एंड वी विल सेल अराउंड 1927। सारों ने बेच दिया, फिर डंप आया, फिर दे डिसाइड अगेन। याद रखिएगा, हर चीज़ के अंदर मैंने आपको बताया एक मैक्रो रेंज होती है, एक माइक्रो रेंज होती है। मतलब रेंज के अंदर भी, ये तो बड़ी मैंने 4 hourly टाइम फ्रेम बनाया ना, 4 hourly टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको और रेंजेस मिल जाएंगी जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ से कॉइन पंप हो रहा है, दोज विल बी मोर सपोर्ट एंड डिमांड जोन। बट इफ़ वी लुक एट द मैक्रो साइड ऑफ थिंग्स, मैक्रो में हमें ये देखें, इधर से जब आता है फिर पंप कर देता है, फिर आता है फिर पंप करते हैं, यू सी द सेम थिंग हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। फिर आते हैं, थोड़ा सा जाके फिर पंप कर देते हैं, फिर आते हैं, और ऊपर कीप्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। सो आवर थीसिस शुड बी के अगर इथीरियम फॉर एग्जांपल अपनी डिमांड जोन के अंदर आता है, which is around 1840, and we see that the RSI is over here in the oversold um, area somewhere, and स्टॉच भी और ये रेड बार्स भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं, that will be a good signal on the 4 hourly time frame to buy ETH. So this is on the shorter time frame. अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, ऑन द 12 hourly time frame, on the daily time frame, आपको एक और रेंज मिलेगी। So if you go on the 12 hourly time frame, we see a bigger range being played out, ठीक है। और वो रेंज कौन सी है, जूम आउट करेंगे हम थोड़ा सा, ताकि हम जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस होगी, जितना ज़्यादा डाटा होगा, DDE, डाटा डिटर्मिन्स एवरीथिंग। ओके, सो जितना ज़्यादा हमें मिलेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। सो वी सी दैट दिस इज़ अ रेंज दैट ETH हैज़ फॉर्म्ड ऑन the
12 आवर्ली टाइम फ्रेम। अब इसका परफेक्ट जो तरीका है वो ये है कि आप खुद मार्क करें एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Now you might be new and you might not know how to mark areas of support and resistance. इस तरह मैं अगर रेंज बनाना चाहूँ ईथ की, तो I see that this is the bottom of the range and actually ये नहीं होगी, around this area is the bottom of the range and this area is precisely, actually this area is the top of the range for now, okay, on the 12 hourly time frame. Again, like I said, it doesn't have to be perfect, लेकिन हम देखें कि टच पॉइंट से देखें, टच पॉइंट है जहाँ से पंप हुआ है, टच पॉइंट है जहाँ से पंप हुआ है और टच पॉइंट जहाँ से नीचे वापस डंप करे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं बनाने आते होंगे ये लेवल्स। आपने हमेशा लेवल्स जो बनाने हैं रेंज के, वो आपने HTF से जाने हैं, 12 आवर से स्टार्ट करने, ठीक है, 12 आवर से स्टार्ट करने, then you go on to 4 hour, then you go on to 1 hour and so on and so forth, 30 minutes and 50 minutes. So अगर आपको लेवल्स नहीं बनाने आते, तो there is this indicator which you can get for free. I will first have to remove an indicator so I can add another one. Let me remove this indicator. इस indicator का नाम है Auto Support JAMC, this indicator over here. What this indicator does is it draws support and resistance levels for you automatically. So you click this once, okay, और आप ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गए हैं ईथ के ऑन द 12 आवर्ली टाइम फ्रेम। अब जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं वो हैं रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, एंड ब्लू इज़ योर एरियाज ऑफ सपोर्ट, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ you first zoom out and see what the macro range is. Macro range का मतलब बड़ी रेंज कौन सी है जिसके अंदर ईथ ट्रेड करे। तो हम अगर मैक्रो रेंज ड्रॉ करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि ये एरिया बॉटम है $1000 का, जहाँ पे इथेरियम बिल्कुल बॉटम आया था। अगर हम जूम आउट करें और, ठीक है, अगर हम जूम आउट करें, सो दिस इज़ योर बॉटम ऑफ द रेंज विच इज़ around $904, ठीक है, and your top of the range is where the top red line is. So ये इस रेंज के अंदर इथेरियम ट्रेड करें, but obviously we want to see the current data also, so what we'll do is we'll draw more levels, हम और levels draw करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करने के लिए लाइंस के कलर चेंज कर दें। सो इफ दिस इज support, you make it either blue or you can make it green. I would like to make it blue, तो हम support की एरिया को blue कर देंगे, ठीक है। We make the support area blue right here, and जो आपकी resistance होगी हम इस एरिया को भी ज़रा blue कर देते हैं, we make it blue, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमने मोस्टली जो एरियाज़ हैं उनको मार्क कर लिया। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू सी कि आप अभी जिस रेंज के अंदर अभी करंटली हैं उसको पहले मार्क कर लें। सो इफ़ वी सी इथेरियम राइट नाउ, these are the ranges that it's at, around 1854, और जो आपकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है अराउंड $2000, ठीक है। So this is the first range. Once you're done making the range, you can turn it off so you don't get confused. So right now if we see Ethereum की जो प्राइस है वो इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर इथेरियम भी आया हुआ है, और ये हम सारी कॉन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस होगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग। So we see that currently on the HTF higher time frames, ETH is trading between 1848 to $2000. Okay, so if for example ETH comes and starts to do something like this and goes up and breaks this range of $2000, तो
एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपकी एक रेंज टूटती है, दिस इज़ योर, ask yourself what is this is your resistance, okay, and this is your support or demand zone. अगर फॉर एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि इफ़ फॉर एग्जांपल ETH goes and starts to make higher highs, higher lows, and breaks this range and comes back down to retest it, और इस retest को हम होल्ड करते हैं, इस एरिया को होल्ड करते हैं, वी स्टार्ट टू गो अप, ये जो आपका सारा प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो बन जाएगा अब आपकी सपोर्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस, दैट इफ़ आई गो and see this range, we've tried to break this range before, right? So what we did was we came over here, ठीक है, हमने इसको इधर से तोड़ा, ऊपर गए, हायर लो बनाने की कोशिश की, एंड व्हेन वी केम बैक डाउन टू रीटेस्ट दिस एरिया फॉर इथेरियम, वी weren't able to hold it. Why were we not able to hold it? Because आप देख सकते हैं towards the left hand side there is not too much confluence. अगर कॉन्फ्लुएंस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये इधर ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हुई, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ वेरी weak support, so it wasn't able to hold it and we came back all the way down over here. So उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमने इस रेंज के अंदर इसको होल्ड करने की कोशिश की, नहीं किया, इस रेंज के अंदर वी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, वी गो डाउन, वी कम बैक अप, now we're again spending time, right? अब अगर इसको हम तोड़ते हैं and we come back down to retest it, हमारे पास सारी इधर ये confluence है, और chances are that we hold this support, and if we start to close above this area on the 12 hourly time frame, एक कैंडल और दो कैंडल क्लोज होती हैं, and we go up, then आप इस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं, and your TP take profit area will be obviously the next resistance areas that are drawn. ये तो हो गया इसका बुलिश सिनेरियो। अब बात करते हैं इसके बेरिश सिनेरियो की। अब आप ये देखें कि इफ़ आई लुक एट दिस जोन एंड सी व्हाट स्ट्रॉन्गर, अगर आपसे मैं पूछूं कि बाकी सारी लाइंस हम डिलीट कर देते हैं एक मिनट के लिए, अगर हम खाली आपसे ये पूछें कि इन दो जोन्स को देख के बताएं जिसके अंदर हम ट्रेड करें, तो ये रेंज बार बार टेस्ट हुई हुई है, ठीक है। Ask yourself this: has support been tested more times, or has resistance been tested more times in this area from here to here? तो obviously हमारा जवाब होगा कि resistance is stronger and support is weak because resistance has only been tested twice over, दोनों दफ़ा रिजेक्शन मिले, लेकिन सपोर्ट आपकी देखें कितनी दफ़ा टेस्ट हुई है, होते होते इवेंचुअली इस एरिया में हमने ब्रेक डाउन कर दिए, एंड once we broke down, all of this area which was prior support became your resistance, so it came back up, इसको तोड़ने की कोशिश की, और क्योंकि अब आपकी रेजिस्टेंस बन गई, we rejected all the way back down to the next area of support जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जब ड्रॉ किया हुआ है हमने इसको आके फिर से टेस्ट किया, एंड वी वर एबल टू ब्रेक थ्रू करने के बाद वी टेस्टेड एज सपोर्ट एंड वी हेल्ड इट, फिर ऊपर गए, फिर इसको हमने टेस्ट किया एंड वी हेल्ड इट, और दूसरी दफ़ा हम रेंज को जाके ट्राई करें, अब वी आर नाउ बैक एट सपोर्ट, ठीक है। सो द सपोर्ट इज़ वीक, वी टेस्टेड दिस मल्टीपल टाइम्स। तो जब आप देखें कि आपकी सपोर्ट कमज़ोर है और बार बार टेस्ट हो चुकी है, तो व्हाट यू डू इज़ यू सी व्हाट द नेक्स्ट बिग सपोर्ट लेवल्स आर, और वो मैंने आपको अभी बता दी कि ये आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। जिस जगह पे ज़्यादा, अगर फॉर एग्जांपल हम इधर से आके इसको ये इधर एक कैंडल क्लोज होती है $12 की, फिर हम इसको रीटेस्ट करते हैं, वी आर नॉट एबल टू होल्ड दिस, तो ये फिर आपकी अगला सपोर्ट एरिया जिसको हम आके फिर से एक दफ़ा टेस्ट करेंगे टू सी वेदर वी होल्ड support or not. Okay, so what I would suggest to you is you get this indicator, auto support JAMC, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक और दफ़ा बता देता हूँ, और
bearish and bullish retest, and then we will move on to the next topic, um, and so on. Okay, so इसको हम एक दफ़ा बंद करते हैं, and I'm again drawing areas over here. ठीक है, now whatever time frame we're looking at, LTF or HTF, ये नीचे वाली हम लाइन को डिलीट करते हैं. Whatever time frame we're looking at, LTF or HTF, you tell me what's strong and what's weak. ठीक है, तो हम ये देखते हैं. So if I ask you now, I will pause for a minute, कि ज़्यादा strong क्या है और weak क्या है. What is more stronger, support or resistance? Okay, if your answer was support, then you're correct कि आपकी जो support है वो ज़्यादा strong है, because again rule of thumb, 3 दफ़ा जो भी चीज़ टेस्ट हो, आपको हमेशा, अगर फर्ज करें 3 दफ़ा सपोर्ट टेस्ट हो, आपको बाउंस मिलेगा. सो हमने 2 दफ़ा सपोर्ट टेस्ट किए एंड वी बाउंस्ड. ठीक है, और बड़े पहले 3 दफ़ा अगर सपोर्ट पे आता है कोई भी कॉइन और कॉन्फ्लुएंस होती है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाउंसेस मिलते हैं. बट यू सी रेजिस्टेंस इज़ वीक. 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट्स, 3 टच पॉइंट्स, 4 टच पॉइंट्स एंड 5 टच पॉइंट्स. ठीक है, तो हमें अब ये पता है कि ये रेजिस्टेंस आपकी बार बार टेस्ट हो रही है और चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी. अब आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, लाइक आई सेड बिफोर, LTF और HTF, अब अगर फर्ज करें बॉटम ऑफ द रेंज है $2, टॉप ऑफ द रेंज है $10. ठीक है, एज मार्केट मेकर्स वी कैन टेल दैट दिस रेंज हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग ब्रोकन. सो व्हाट विल डू इज़, इधर से मार्केट मेकर्स पुश करेंगे बिकॉज रेजिस्टेंस काफ़ी दफ़ा टेस्ट हुई है. वंस दिस ब्रेक्स आउट, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको 12 आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, अगर 12 आवरली कैंडल एक इधर ऊपर क्लोज होती है एंड फिर एक और क्लोज होती है एंड देन वी कम बैक डाउन टू रीटेस्ट इट एंड वी होल्ड दिस एरिया, तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं SR फ्लिप, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेकआउट. We've broken out of the $2 to $10 range by testing resistance again and again, और इसको हमने क्योंकि एरिया को तोड़ा है और उसको होल्ड किया है and we've started making higher highs and higher lows, तो जो $10 की पहले आपकी रेजिस्टेंस थी ये अब आपकी सपोर्ट बन गया. सो यू ऑलवेज 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 either wait to buy support or you wait and buy the breakout on the retest. ठीक है, तो ये हो गया bullish scenario. I hope this makes sense to you. You can always go back and re-watch this again. तो आपकी जो रेंज थी $2 से $10 की, वो टूट गई टूवर्ड्स द अपसाइड. ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, आपने इधर से ले लिया. अब उस नई रेंज के अंदर बाय लुकिंग एट प्रायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, उसके मुताबिक ट्रेडिंग होगी और फिर एक नई रेंज बनेगी. फॉर एग्जांपल ऐसे अगर रेंज बनेगी तो हो सकता है एक $10 से लेकर $15 की रेंज बन जाए एंड देन विल सी वेदर दैट रेंज ब्रेक्स और नॉट. $10 से ऑब्वियसली आपको बाउंसेस मिलेंगे बिकॉज ये आपका सपोर्ट का एरिया है, लेकिन अगर सपोर्ट बार बार टेस्ट होना शुरू होगी तो वी माइट कम बैक डाउन इनटू द सेम रेंज अगेन विच इज़ द $2 to $10 रेंज. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स के BTC की क्या पोजीशन है, कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई, वेयर इज़ द RSI, and what is the market structure that's being followed. So if we see over here, ये मार्केट स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से, तो आप एकदम से मुझे कहेंगे कि ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है. So I have now shown you what a bullish retest might look like. Now we'll do the same thing again and मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल if this starts happening, ठीक है, if this starts happening, तो आप मुझे अभी बताएं कि क्या आपकी सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो बाय लुकिंग एट दिस यू कैन क्लियरली से दैट योर support is weak because we have a lot of touch points towards the downside, hence your support is weak and there are chances that your support might break. Okay, और ये जब इधर से टूटेगी
और वापस रीटेस्ट करेगी, तो ये जो आपकी प्रायर सपोर्ट थी अब ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, it will do a bearish retest, try to break this resistance, and since it's now testing this new resistance for the first time, it will likely get rejected and start coming back down। और फिर bearish scenario में वो आपको retest में पता चलेगा कि अगली रेंज कौन सी फॉर्म होती है by looking at prior support and resistance areas। So this was the lecture about support and resistance. The final thing that I want to tell you guys that a lot of people use is called the fair value gap, otherwise known as inefficient candles. Again, ये आप जिस भी time frame के ऊपर देख रहे होंगे, whether you're looking at LTF or HTF, these always apply and can be very helpful। इसका simple rule जो है वो ये है कि किसी भी जगह पे when you see a big candle, but whether it's red big red candle or whether it's a big green candle, आप लोगों ने ये देखा होगा। फर्ज करें अगर आपने $1 पे एंट्री ली है एक लॉन्ग पोजीशन की, या स्पॉट पे अपने $1 की एंट्री ली है, ठीक है, एंड आपने स्टॉप लॉस 0.98 का लगाया है, एंड इफ़ इट कम्स डाउन, कभी कभी ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, या अगर आपने $1 पे लिया और आपने टेक प्रॉफिट एरिया $2 का लगाया हुआ है, वो $2 पे जाएगा और आपका टेक प्रॉफिट एरिया हिट नहीं होता एंड इट कम्स बैक डाउन। सो वो जो एरिया है वो जो फिल नहीं होता, उधर लिक्विडिटी रह जाती है। और हमेशा लिक्विडिटी हमेशा हमेशा जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इनएफिशिएंट कैंडल्स जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, ये दे ऑलवेज गेट फिल्ड। सो बाय फिलिंग इट मीन्स कि वो हाफ, मतलब वो हाफ में भी फिल हो सकती है या कम्प्लीटली फिल हो सकती है। कैसे? अभी फॉर एग्जांपल देखें आप, ये एक इनएफिशिएंट कैंडल बनी है, ठीक है, और फिर एक ये इनएफिशिएंट कैंडल बनी है, राइट? सो दिस कैंडल हैज़ filled this inefficiency, and these three candles have filled the inefficiency that was created here, otherwise known as fair value gap। For example, अगर आप इधर भी देखें, आप ये देखें कि इस एरिया में inefficient कैंडल बनी है ऑन द 12 आवर्ली टाइम फ्रेम, ठीक है, और फिर बाद में इट केम बैक डाउन एंड सारी की सारी कैंडल फिल हुई है, it's been filled। So anytime that you see big candles, whether it's red or whether it's green, just understand कि ये एक inefficient candle है, और एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी, those candles will get filled by the future candles that will be in the future। Okay, so that's how inefficient candles work। इसका एक अच्छा आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको सुन के खुशी होगी और देख के भी खुशी होगी, आई एम श्योर। if we go on the 12, actually on the weekly time frame पे अगर हम जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमेशा साइकिल्स के अंदर इनएफिशिएंट कैंडल्स बनती है जो बाद में फिल होती हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे यू सी all these inefficient candles which were then filled over here, ठीक है, फिर से ये इनएफिशिएंट कैंडल्स बनी, फिर वो इस जगह पे आके फिल हुई। तो इस तरीके से ये इनएफिशिएंट कैंडल्स बुल और बेयर मार्केट्स में बनती रहती हैं। अभी आप देख लें द एरिया दैट वी आर एट राइट नाउ, अगर आप बुल मार्केट को और वो सारी कुछ चीज़ों को देखें, तो ये सारी जो एरिया है, दीज आर ऑल इनएफिशिएंट कैंडल्स। दैट मीन्स के टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड कोई ट्रेडिंग नहीं हुई हुई, और ये बहुत बड़ा डंप आया था व्हेन द बेयर मार्केट स्टार्टेड। दीज विल गेट फिल्ड बाय BTC इवेंचुअली क्लोजर टू द हैविंग। और अगेन DDE, डेटा डिटरमिन्स एवरीथिंग। हमने यही देखा है कि जिस तरह हमें डाटा मिलता है, वो जो कैंडल्स बनती हैं या साइकिल्स होती हैं वो हमेशा फिल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर भी देखें, 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एंड देन दीज कैंडल्स वर फिल्ड ओवर हियर, ठीक है। फिर अभी ये कैंडल्स भी हैं जो फिल होनी है, जिसको BTC फिल करेगा इन द coming year or so। So all these things add up when you're doing trading। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप हैविंग की साइकिल को मिलाएं together with market structure, then support and resistance, and then we're seeing
on the weekly time frame, बड़े time frame पे we're making higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. ठीक है, ऐसे बन रहे, तो that means closer to the halving which is going to happen in 2024. These inefficient candles will get filled. Halving के कुछ अर्से बाद हमारी cycle start हो जाएगी, and then you guys will make a lot of money inshallah. Again, if there are any confusions, if there are any questions, go back and watch the lecture again. If you still don't understand, you can join our free Discord community, जिसके अंदर आके आप ये सवाल कर सकते हैं. The link of that Discord community is in my Instagram's bio. I'm sure you will be following me on my Instagram because this is where you got in touch with me for the course. So हमारे जो Discord है उसके अंदर 50,000 free members है, community members, where we talk to each other, ask each other questions, and I look forward to seeing you in that community. And I look forward to seeing you in the next module, which will also be very, very important, like the best of the modules. And we will continue our module from there, which will be about level to level trading and many other things. Stay motivated, stay focused. Well done, and I will see you guys in the next lecture. Take care.